اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، اس چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ نوٹ بندی کو لے کر سپریم کورٹ کے ججوں میں اختلاف ہو گیا۔ جی ہاں، آئینی بینچ نے فیصلہ دیا کہ نوٹ بندی کا فیصلہ درست ہے، جبکہ دوسری جج جسٹس ناگرتنا نے کہا کہ نوٹ بندی بالکل بھی غلط اور غیر قانونی تھی، سب کچھ حکومت کی خواہش کے مطابق ہوا۔ یعنی نوٹ بندی پر ججوں میں وواد ہو گیا، ججوں میں اختلاف ہو گیا۔ حالانکہ اب بی جے پی جو ہے بڑی خوشیاں منا رہی ہے، تو نوٹ بندی پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بی جے پی نے ڈیمانڈ کیا کہ راہل گاندھی کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ راہل گاندھی نوٹ بندی کے فیصلے کو بالکل غلط بتا رہے تھے۔ لیکن جناب یہ سن لیجئے کہ سپریم کورٹ کے ججوں میں بھی اختلاف ہو گیا۔ جسٹس ناگرتنا نے کہا کہ نوٹ بندی بالکل غیر قانونی تھی، سب کچھ حکومت کی خواہش کے مطابق ہوا، جبکہ آئینی بینچ جو بنائی گئی اس میں خبر آ رہی کہ 1-4 کی اکثریت سے نوٹ بندی کے خلاف دائر درخواستوں کو خارج کر دیا گیا۔ 4 ججوں نے نوٹ بندی کے فیصلے کو درست اور جسٹس بی وی ناگرتنا نے اسے بالکل غلط قرار دیا۔ عدالت نے 7 دسمبر کو تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور اب یہ فیصلہ آیا ہے۔ آئینی بینچ نے کہا ہے کہ نوٹ بندی کا فیصلہ درست ہے، جبکہ جسٹس ناگرتنا نے کہا کہ نوٹ بندی کا فیصلہ بالکل غیر قانونی تھا اور سب کچھ حکومت کی خواہش کے مطابق ہوا۔ کانگریس نے کہا کہ نوٹ بندی سے ملک کی ترقی کو بڑا نقصان پہنچا اور ہر عام آدمی اس کو سمجھتا ہے، اور کانگریس نے یہ بھی کہا کہ عدمی اتفاق یعنی ججوں میں بھی اتفاق نہیں ہوا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ معاملہ بالکل گڑبڑ تھا، نوٹ بندی سے ملک کی ترقی کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ ایک لڑکی کو بڑی بے رحمی سے گھسیٹ کر مار دیا گیا۔ جی ہاں، بی جے پی کے رکن، گھسیٹنے والے بی جے پی کے کارکن ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس ملزمین کو بچانے کا کام کر رہی ہے، کیونکہ لڑکی کو بے رحمی سے گھسیٹ کر مار دینے والے بی جے پی کے رکن ہیں۔ وزارت داخلہ نے رپورٹ مانگی ہے۔ نربھیا جیسی یہ واردات ہوئی ہے، اس کے خلاف اب آندولن شروع ہے۔ بی جے پی کے
पोस्टर फाड़े गए हैं, मगर हमारे यहाँ की दल्लाल मीडिया पूरी तरह से खामोश है। जो आफताब पर चिल्ला रही थी और चिल्ला रही है, जो अभी सीजान खान पर चिल्ला रही है, वो सारी मीडिया अभी खामोश है, क्योंकि इस मामले में लड़की को बेरहमी से घसीट कर मार देने वाले, मर्डर कर देने वाले बीजेपी के रुकन है और तमाम के तमाम हिंदू है। इसलिए हमारी मीडिया जो पूरा भौंकने का हक अदा करती है, वो पूरी तरीके से सन्नाटे में है, खामोश है, और सारी एंकराएं आईसीयू में एडमिट है, क्योंकि यहाँ मामला उल्टा है, क्योंकि यहाँ बेरहमी से बेटी को मार देने वाले तमाम के तमाम हिंदू है। अगर इसमें एक भी मुसलमान हुआ होता तो फिर उसे मेन मुजरिम बताकर भोंकने का हक मीडिया अदा जरूर करती। आइए नाज़रीन, उत्तराखंड की बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में एक पूरी की पूरी बस्ती पर बुलडोजर चलाने की कोशिशें की जा रही है और आदेश भी आ गए हैं। उस बस्ती में न कोई मस्जिद रहेगी न मंदिर रहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन मजलूमीन के घर उजड़ने पर खुशियां मना रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आदेश जो आया है, इसमें यूं समझिए कि 95% मुसलमानों के घर टूटेंगे, इसलिए एक तबका, उसे समाज भी नहीं कहेंगे, एक आतंकी जहन रखने वाला तबका बड़ा खुश है। लेकिन इस मामले को लेकर बड़ी बात ये सामने आई है कि इस मामले को लेकर, जो उत्तराखंड का मामला है, इसको लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 5 जनवरी को इस मामले में समाअत होगी। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने यह इत्तला दी है कि सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने इस मामले में मुतअस्सिरीन के लिए, मजलूमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन बाद यानी 5 जनवरी की तारीख दी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। उत्तराखंड के इस मामले में हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि यह रेलवे की जमीन है और गैर मजाज काबिजीन को बेदखल किया जाए। इस फैसले से 4000 से जायद परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलेगा और ये सब लोग बेघर हो जाएंगे। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही मुंबई से। जमीयत उलमा से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि कर्नल पुरोहित को अदालत से जबरदस्त झटका लगा है। मोहतरम गुलजार आजमी साहब, जो जमीयत उलमा लीगल सेल के सरबराह है, उन्होंने कहा कि अब कर्नल पुरोहित को मुकदमे का सामना करना ही पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बम धमाका करना ऑफिशियल ड्यूटी में शामिल नहीं है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाका मामले में, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, उसका मेन कलीदी मुलजिम कर्नल पुरोहित की जानिब से मुकदमे से डिस्चार्ज करने वाली अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने फैसला सादिर किया और सख्त टिप्पणी तबसरा करते हुए कहा कि बम धमाका करना ऑफिशियल ड्यूटी में शामिल नहीं है। गुलजार आजमी साहब ने कहा कि अब कर्नल पुरोहित को अदालत से जबरदस्त झटका लगा है और कर्नल पुरोहित को मुकदमे का सामना करना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि इसी मामले में अहम मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी है, जो बीजेपी के मेहरबानी से अब पार्लियामेंट में पहुंच गई है और आज भी वो जहरीले बयान देकर मुल्क के अमन को खराब करने का काम कर रही है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है उर्फी जावेद, जो बेशर्मी की, नंगेपन की सारी हदें पार करती है और महिलाओं के भी अपमान का जरिया बनती है। इस वक्त खबर आ रही है कि चित्रा वाघ ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से तहरीरी शिकायत की और चित्रा वाघ ने यह कहा कि उर्फी जावेद जहां दिखेगी वहां उसे तमाचा मारूंगी। अब उर्फी जावेद ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से तहरीरी शिकायत की और कहा कि ये सियासतदानों
को कोई काम नहीं है। बीजेपी खवातीन की अध्यक्ष चित्रा वाघ ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फांसलकर को तहरीरी शिकायत की है कि उर्फी जावेद जो अजीब व गरीब लिबास पहनकर मुंबई की सड़कों पर नंगी घूमती है, ये फहाशी बंद की जाए। उर्फी ने भी चित्रा वाघ को इतना ही सख्त जवाब दिया और कहा कि सियासतदानों को कोई काम नहीं है। इस पर चित्रा वाघ ने उर्फी के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। चित्रा वाघ ने कहा कि अवामी मकामात पर इस तरह की उरियानियत और नंगापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिरी दम तक लड़ेंगे लेकिन उर्फी को सबक सिखाएंगे। मैं इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिली हूं। अगर अब भी उर्फी की हरकत बंद नहीं हुई तो फिर वो जहां दिखेगी उसे तमाचे मारे जाएंगे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। कॉमन सिविल कोड, यकसा सिविल कोड को लेकर अब बाकायदा 2024 करीब आ रहा है, तो ऐसे तमाम जिन जो बोतलों में बंद है इनको खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि फिर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। और बीजेपी कतई ये नहीं सोचती है कि इससे मुल्क का नुकसान होगा। खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, उन्होंने कहा है कि यकसा सिविल कोड का निफाज मुल्क की सालिमियत, मुल्क के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिविल कोड का मतलब दरअसल समाजी कानून है जो मुगलों और अंग्रेज़ों के दौर में लागू था, जिसके ज़रिए हिंदुओं के मसाइल की यकसुई की जाती थी और अंग्रेज़ उसी वक्त चाहते थे कि यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए, जबकि उस वक्त मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद के मानने वालों के एतराज़ के बाद इस कानून के निफाज से परहेज किया गया। मौलाना ने कहा कि यकसा सिविल कोड का निफाज मुल्क के अमन, मुल्क की सालिमियत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इस वक्त सत्ताधारी पार्टियां हर तरीके से चाहती है कि बस हमारी सत्ता, हमारी कुर्सी बची रहे, जिसके लिए मुल्क को नुकसान भी पहुंचे तो चलेगा। आइए, इस वक्त रियासत उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से बड़ी खबर आ रही। कानपुर से हमारे रिपोर्टर अब्दुल मालिक ने बताया कि जमीयत उलमा शहर कानपुर के ज़ेर एहतमाम सिविल लाइन्स में वाक़े मर्चेंट चैम्बर ऑडिटोरियम में जमीयत उलमा शहर कानपुर के सदर डॉक्टर हलीमुल्लाह खान की ज़ेर सदारत एक सद्भावना कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें तमाम धर्म के मानने वाले धर्म गुरुओं को और तमाम धर्म के पंडितों और बड़ों को बुलाया गया। इस वक्त मुल्क में नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं। मुल्क में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की घटिया किस्म की राजनीति करके माहौल को ख़राब किया जा रहा है। जमीयत उलमा जो मुल्क की सबसे बड़ी सेवक संगठन है, ये मुल्क में अमन, एकता, सद्भावना के लिए काम करती है। इसी जमीयत उलमा ने कानपुर में एक शानदार कॉन्फ्रेंस सद्भावना सम्मेलन, सद्भावना संसद का इनेकाद किया, जिसमें हरजोत सिंह ने कहा कि सद्भावना के झंडे तले हम सब हिंदुस्तानियों को जमा होना चाहिए। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि नफ़रत को नफ़रत के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा शहर कानपुर के ज़ेर एहतमाम सद्भावना संसद का इनेकाद हुआ। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने एक दूसरे का हाथ थाम कर यकजहती, एकता, सद्भावना का संदेश दिया और बताया कि मुल्क को इस वक्त जोड़ने की जरूरत है और नफरतों को खत्म करने की सख्त जरूरत है। अय्याद, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रोग्राम में ये कहा कि उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने के लिए, वजीर आला के ओहदे के लिए उद्धव ने बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपा। औरंगाबाद में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने यह बयान दिया, जिस पर उनके पोस्टर फाड़े गए और जबरदस्त अंदाज में उनका विरोध किया गया। औरंगाबाद की अवामी मीटिंग में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए थे। जालना रोड पर मीटिंग के लिए लगाया गया बैनर उखाड़ दिया गया। ये बैनर को बंजारा ब्रिगेड ने फाड़ा है। औरंगाबाद में गुज़िश्ता कल बीजेपी की मीटिंग में बीजेपी ओहदेदारों ने शहर में मुख्तलिफ बैनर्स, होर्डिंग्स और झंडे लगाए थे। एक तरह से शहर को बीजेपी का शहर बना दिया गया था। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा का ये बयान पूरे इलाके में माहौल को खराब कर गया और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बन गया और बीजेपी के सदर के पोस्टर फाड़ दिए गए। आइए, इस वक्त चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वजीर आला पंजाब की रिहाइश गाह के करीब बम बरामद हुआ है। पीर की शाम चंडीगढ़ में कंसल और नया गांव टी पॉइंट के करीब एक जिंदा बम
पाया गया। हुक्काम ने बताया कि जिस इलाके में ये बम पाया गया है वो पंजाब के सीएम भगवंत मान की रिहाइशगाह से, उनके बंगले से 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर नहीं है। पुलिस ने बताया कि बम की इत्तला मिलते ही फौरन वो मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। फौरी तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर रवाना कर दिया गया। इंतजामिया ने फौज को भी इस वाक़े से आगाह कर दिया है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, मुल्क की जर्नलिस्ट की, पत्रकारों की एक बड़ी संगठन है जिसे वॉइस ऑफ मीडिया के नाम से जाना जा रहा है। 1.5 साल की कम मुद्दत में इस संगठन ने मुल्क के 23 स्टेट में अपना जाल बिछा दिया है और 18 से 20 हजार पत्रकार जर्नलिस्ट इस संगठन से जुड़ चुके हैं, जिसके संस्थापक अध्यक्ष है संदीप जी काळे। जी हाँ, मैं भी इस संगठन का हिस्सा बन गया हूं और संदीप जी काळे ने और इनकी पूरी टीम ने मुझे उर्दू विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। यह संगठन हिंदू मुस्लिम तमाम पत्रकार अपने हुकूक की लड़ाई, पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारिता की सुरक्षा, क्योंकि इस वक्त पत्रकार भी महफूज नहीं है और पत्रकारिता भी महफूज नहीं है। पत्रकारिता में भी बिल्कुल गलत लोग निगेटिव अंदाज में पत्रकारिता करते हुए या बिकी हुई पत्रकारिता करते हुए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मानवता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वॉइस ऑफ मीडिया सकारात्मक पत्रकारिता, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म पर यकीन रखती है और पत्रकारों की और पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए और मुल्क की सुरक्षा के लिए काम करती है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त महाराष्ट्र का उर्दू विंग का अध्यक्ष बनाया गया है, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है मोहतरम मुश्तबा फारूक साहब को, जो एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड इंसान हैं और यूँ समझिए कि पूरे मुल्क में समाजी और मानवता और इंसानियत के लिए काम करते हैं और ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। मुश्तबा फारूक साहब को मोहतरम संदीप काळे साहब की रजामंदी और मैं जो उर्दू विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारी रजामंदी से मोहतरम मुश्तबा फारूक साहब को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष उर्दू विंग बनाया गया है। हम मुश्तबा फारूक साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो वॉइस ऑफ मीडिया की आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के पत्रकारों को इससे जोड़ेंगे। और इस खबर के ज़रिए से मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि मुल्क के किसी भी शहर और कोने में आप अगर पत्रकार हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आइए पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे नंबर पर जो दिए जाते हैं कांटेक्ट कीजिए, आपको भी इस टीम का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि आप और हम सब मिलकर मुल्क की पत्रकारिता की और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।